Students, today we discuss aerial velocity. देखो जैसे आप लोग वेलोसिटी पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे एरियल वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया. कि when a particle moves along a plane curve, the rate of change of sectorial area traced out by a radius vector joining particle to a fixed point is called the radial velocity of the particle. कि जब कोई भी पार्टिकल प्लेन कर्व में मूव करता है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर क्या है? ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू अ फिक्स्ड पॉइंट. पता है आपको ये रेडियस वेक्टर होता है. देन दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. एरियल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें क्या दिखाना है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है. एक तो एरियल वेलोसिटी होने का कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट. Secondly, we have to show linear velocity varies inversely as the perpendicular from center upon tangent to the path. कि जो linear velocity है वो inversely vary करेगी as a perpendicular distance. Perpendicular कहाँ से? From center upon tangent to the path. From center से इस path पे जब हम tangent draw करते हैं तो उस पे perpendicular means OM is perpendicular here to the tangent. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दिखाना है हमें. तो इसमें हमने कंसीडर किया O इज द फिक्स पॉइंट एंड लेट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ फोर्स. OX is the initial line. Let at time t particle is present at point P making an angle theta with the x-axis and R is the radius vector. Means vector OP is vector R. And after some time delta t particle reaches at point Q making an angle theta plus delta theta with x-axis, or we can say making an angle delta theta with OP, and the radius vector OQ is R by R plus delta R. ठीक है. अगर हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे R थीटा और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? R प्लस डेल्टा R एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा. ये D थीटा की जगह यहाँ क्या है? ये डेल्टा थीटा है. एंड एंगल POQ क्या है हमारा? डेल्टा थीटा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ this is equal to. अब आप यहाँ से देखो तो POQ is not a triangle. This is because PQ is an arc, not a straight line. But when Q is very near to P, then this arc will represent a straight line. It becomes a straight line. So we treated this area, this sectorial area OPQ as the area of triangle OPQ. Now area of the triangle OPQ is equal to, using the formula, half into OP into OQ into angle between them, means sin delta theta, means sine of angle between them. Just हमने वैल्यू रखी. OP is R, OQ is R plus delta R and sin delta theta. Now this is the area of sectorial area and we have to find the aerial velocity, means rate of change of sectorial area. So this is equal to limit delta t tending to 0 sectorial area divided by delta t. सेक्टोरियल एरिया की वैल्यू रखी, डेल्टा टी से डिवाइड किया, लिमिट ले ली. नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ r plus delta r because delta theta is very small, so sin delta theta is approximately equal to delta theta divided by delta t. Now this is equal to half. When we multiply r into r we get r square, and we multiply r by delta r, then we get r delta r into delta theta वाली टर्म भी बचेगी क्योंकि आपकी. And since delta r is the change in r, delta theta is change in angle theta, and both terms are very small and their product is again very small, so we neglect it here. So we get half r square delta theta by delta t, and on taking limit we get d theta by dt. And r square d theta by dt is represented by h in last article, which is constant. So h by 2 is constant, means we have proved here aerial velocity, means rate of change of sectorial area is constant, which is equal to h by 2. Now we have to show the linear velocity is inversely proportional to the perpendicular distance from the fixed point to the tangent at the point. So for this we draw a tangent at point P and produced it further, and we draw a perpendicular OM to this tangent. ठीक है. तो यहाँ देखो, draw OM perpendicular from point O to the tangent at P, and this perpendicular OM is represented by P. P is perpendicular here. Now sectorial area POQ is equal to limit delta t tending to 0 half PQ
into perpendicular from point O to PQ. जो POQ जो सेक्टोरियल एरिया है आपका, ये देखो POQ, ये आपके पास फिर एक ट्रायंगल, हम इसको एज्यूम कर चुके हैं बिकॉज Q इज वेरी नियर टू P। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और हमें पता चल जाए कि ये उस पर परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड बोलते हो ना आप। तो हाफ PQ क्या हो गया, बेस, और साथ में क्या लिखा हमने, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू पॉइंट PQ, और PQ पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया हमने, OM, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज इक्वल टू P, एंड PQ इज डेल्टा S। तो ये क्या आ गया, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, हाफ डेल्टा S इंटू P। नाउ दिस इज द सेक्टोरियल एरिया। नाउ वी फाइंड rate of change of sectorial area means aerial velocity, aerial velocity means limit delta T tending to 0, इसको हमने क्या करना, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट लेने के बाद ds by dt, एंड ds by dt is rate of change of displacement, linear velocity, ds by dt means linear velocity v, तो ये क्या बन गया, हाफ p v, where v is the linear velocity at point p। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 में हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू h/2। तो फ्रॉम फिगर 2 वी गेट h/2 is equal to half pv, so v is equal to h/p means, और and h is constant, so v is inversely proportional to p, where p क्या है आपका, perpendicular distance from the center of force to the tangent at point p, यही हमें प्रूव करना था। क्रोली देखो इसकी, टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन पाथ इज नोन, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किस केस में, जब हमें पाथ नोन हो। नाउ वी हैव pv इज इक्वल टू h, अभी हमने ये रिलेशन निकाला था pvh, या दैट इज v इज इक्वल टू h बाई p, मींस लिनियर वेलोसिटी निकाली थी वैल्यू। नाउ v स्क्वायर क्या बन गया हमारा, h स्क्वायर बाय v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर, और 1 बाय p स्क्वायर की हमने वैल्यू डाल दी जो पेडल फॉर्म में हमने यूज की थी। 1 बाय p स्क्वायर क्या था, 1 बाय r स्क्वायर प्लस 1 बाय r रेज़ टू पावर 4 dr बाय d थीटा होल स्क्वायर। r को हमने चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ u में चेंज करके भी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इसके इक्वल आ रहा था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, लीनियर वेलोसिटी का एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। मींस अगर आपको पाथ नोन है, पाथ नोन का मतलब आर थीटा में या यू और थीटा में आपको इक्वेशन नोन है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इनटू u स्क्वायर प्लस du बाय d थीटा होल स्क्वायर। सेकंड प्रॉब्लम, टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन f मींस फोर्स इज नोन, अगर हमें फोर्स नोन हो, फोर्स पता हो और फिर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पेडल इक्वेशन यूज करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की, h स्क्वायर बाय p क्यूब dp बाय dr इज इक्वल टू f। इंटीग्रेट किया इसको, तो ये क्या आ गया, एक तरफ हमने p की टर्म रख ली, एक तरफ हमने रख ली r की टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बाय p क्यूब dp इज इक्वल टू f dr, एंड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये h स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो ये है आपका p क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1 बाय 2 1 बाय p स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि v क्या था हमारे पास, h बाय p था, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f dr प्लस c। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कि अगर हमें फोर्स नोन हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।